Still we are waiting for Alia to join us. Let's introduce this topic a bit. I have talked about the concept of lovemaking or rape. So here I'm talking about sex being used to express one's emotion in the form of love and affection and in the form of aggression. Rape is seen as aggression. It can also be a form of frustrations. But obviously, Alia is here, so let's try to get her in. Okay, we are waiting for her to get connected. I'll get back to you. Okay. Good. So you are online. हाँ. Okay. Say hi. Hi. Give Would me she be 5. also Give me 10 come? minutes. कितनी देर लगेगी? 10 मिनट काफी है. 10 मिनट काफी है ना? 10 मिनट दो मुझे. ठीक है. हाँ बताओ. Okay. So basically, as I told you earlier, that we are going to talk about lovemaking and rape. And interestingly, now let's introduce a bit about Alia, where I would like to introduce her. She has a lot of facets of hers, but here I'll introduce her as a person who had actively been involved into making of a podcast talking about sex and sex education and rape. Uh, so that's the reason that I felt that, she could be an interesting person to talk to. And interestingly, we are talking over here about rape under the category of sex education is because seemingly the whole concept of sex is quite misplaced in India or It lot is. of places, other places also. So let's see what can come up in our discussions. So let's I hear. think, Deepali, you are aware of the incident that happened with me. I would like you to share it over here. Yeah. In whatever words you would want to. Yeah, sure. See, what happened was that, usually कहते हैं कि, can I talk in Hindi? I mean, if people are comfortable चलेगा, with. mixture चलेगा. See, the thing is that कि लोगों को ना कंसेंट समझ में नहीं आता. उनको लगता है ना दे पिक अप ऑन दो सिग्नल्स. उनको लगता है कि लड़की कहता है ना हंसी तो फंसी या उसने बात कर ली तो फिर उसकी तरफ से हाँ है. तो ये सारे मतलब लड़कों को लगता है. आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ द गाइज बट अ मेजॉरिटी ऑफ गाइज I can थिंक just laugh over this idea. वही हंसी तो फंसी वाली. मतलब मोस्ट ऑफ द गाइज Exactly. हंसी तो फंसी, बात कर ली तो बहुत मतलब इंटरेस्टेड है, या फिर मिल ली मिल ली, हाँ. जवाब दे दिया. मतलब I was at a मतलब I was at a tea shop and मुझे ना since I like dogs, I like cats, मतलब puppies वगैरह मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. वो रोड साइड के हों या ब्रीड के हो, doesn't matter. तो I was at a tea shop and I met a guy. मतलब एक्चुअली वो उसने मुझे अप्रोच किया ये कह के कि अच्छा यू ऑल्सो लाइक डॉग्स. आई ऑल्सो लाइक डॉग्स. मतलब दैट क्लासिक मूव कि मतलब लड़की को जिसमें इंटरेस्ट है बोल दो मुझे भी उसमें इंटरेस्ट है तो फिर लड़की बात कर लेगी. सो आई थॉट आई वॉज जेन्युइनली वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है कोई और भी है जो एनिमल लवर है. मैंने उस टाइम ज्यादा नहीं सोचा उस चीज का. तो आई कैजुअली टॉक टू हिम एंड ऑल एंड देन फिर बात आई कि कि मेरे पास उस टाइम पे 2 कैट्स थे. तो हम अब तो व्हाट हैपेंड वाज दैट कि मैंने उसको फिर कहा कि चलो वुड यू लाइक टू सी माय कैट्स.
तो Which she does I it with everybody. She does it with the world around. She has got हाँ lovely cats. yeah actually see what happens is that कि usually neighbors को भी अच्छा लगता है जब मैं when I was living in अशोक विहार तो मेरे पास नेबर्स आते थे कि अच्छा मेरे बेटे को आपकी बिल्ली देखनी है या मेरी बेटी को आपकी बिल्लियां देखनी And है especially cats, I think, Alia, we'll have to mention this factor that, the concept of having dog as pets is very common, but people are, intrigued parents feel it very different when there are cats at home. So they want to first see how it is. you have How is no the idea idea of guys breeding cats? Yeah. no so see what happens is that कि इंडिया में आज भी एक मिसकंसेप्शन है कि कैट्स जो हैं they bring bad luck trust Could be me even because of that also. most of them trust me मेरी mother sorry Hmm. to मतलब say this मतलब she's my mother I shouldn't be saying this ideally Oh, she sorry. This is a space where you can speak. हाँ सो शी सेड कि मतलब तुम्हारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि क्योंकि कहते हैं ना कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तुमने तो पाली रखी है एंड आई वाज लाइक व्हाट आई मीन ये क्या था एनीवे गोइंग कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग सो Hmm. नेचुरली बातचीत हुई अब आई डोंट नो कि उसने कहा या मैंने कहा व्हाट हैपेंड वाज दैट कि मैं मतलब इवेंचुअली ही केम टू माय हाउस मतलब आई ब्रॉट हिम होम एंड आई मैंने वही काम किया जिसके लिए मैं आई थी मैंने उसको यू नो अपनी कैट्स को इंट्रोड्यूस कराया कि ओके ये टॉम है ये चार्ली है एंड सिंस आई वाज अंडर दैट इम्प्रेशन दैट ही लाइक्स एनिमल्स एंड व्हाट हैपेंड वाज दैट आई डोंट नो मतलब वो ठीक है वो बेड पे बैठ गया एंड व्हाट हैपेंड एंड ही ट्राइड टू टच माय हैंड्स आई वाज अनकंफर्टेबल मैंने अपना हाथ विड्रॉ कर लिया उसके हाथ से तो उसको तब भी नहीं समझ में आया कि मतलब आई एम अनकंफर्टेबल एंड धीरे धीरे ही started to come closer to me and I was really uncomfortable at that time and मैंने फिर इवेंचुअली उसको बोला मतलब उसने कुछ नहीं कुछ गाने वाने मतलब गाना भी गा के सुनाया वो कौन सा गाना है दिल आजकल मेरी सुनता नहीं दैट का मतलब अच्छा गाया था उसने दैट्स फाइन बट मुझे उस गाने से नफरत हो गई लिटरली आफ्टर व्हाट ही डिड ही मैंने उस व्हाट हैपेंड वाज दैट कि मैंने उसको बोला कि फाइन यू कैन लीव नाउ एंड उसने कहा कि कैन आई गेट अ किस एंड आई वाज लाइक नो आर यू क्रेजी वी हैव जस्ट मेट राइट वी हैव जस्ट टॉक्ड एंड आर यू लाइक सुपर क्रेजी अबाउट दिस थिंग तो मैंने उसको मना कर दिया एंड वहीं पे एक उसको समझ में आ जाना चाहिए था कि his tactics are not going to work मतलब ठीक है I brought him home but I brought him home only to see my cats that was my only purpose he forcibly kissed me he pushed me on my bed and he forcibly kissed me और नेचुरली उसके हाथ इधर उधर मेरे कपड़ों पे एंड सिंस ही वाज अ 5 आई थिंक रफली 5 feet 10 inches टॉल गाय तो हैवी बिल्ड था उसका एंड आई एम अ 50 kg पर्सन एंड 5 feet 2 inches तो मेरा जो स्टैचर था उसके सामने वीक था मैं उसको हटाने की कोशिश करती रही अपने ऊपर से एंड मैं नहीं हटा पाई ठीक है इवेंचुअली मैंने उसको पुश किया एंड मैंने उसको ये बोला कि यू हैव टू से सॉरी अबाउट दिस एंड ही वाज लाइक यस आई एम सॉरी एटसेट्रा एटसेट्रा तो मैंने उसको बोला कि दिस वाज नॉट करेक्ट आई नेवर सेड यस टू यू एंड आई नेवर सेड यस टू किसिंग यू ही सेड सॉरी 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 रिपीटेडली एंड फिर उसने बोला कि कैन आई कम अगेन एंड आई वाज लाइक ओ यू कैन बट ओनली इफ यू बिहेव मतलब I don't believe you are a bad person. But you can be a better person if you behave. There are more chances. मतलब हमारे दोस्त बनने के chances ज्यादा हैं अगर तुम अच्छे से behave करते हो तो. If you respect the boundaries. He said he agreed to that. Later on, he came again
after, I guess half an hour or so. And I was sitting on my bed. I was, checking my Twitter account. I'm very active at, on Twitter actually. So वो मेरे पास आके बैठ गया. एंड यू नो व्हाट, ही उसके हाथ उसके कंट्रोल में नहीं थे, उसको समझ में ही नहीं आया. उसने थोड़ी देर पहले मुझसे ये कहा था कि आई एम सॉरी, आई विल नॉट डू दिस अगेन, एंड आई टोल्ड हिम दैट यू कैन कम अगेन बट ओनली इफ यू बिहेव. आते ही आते उसने फिर से वही हरकतें चालू कर दी, ट्राइंग टू टच मी एंड ऑल. एंड लेटर ऑन ही forced himself on me. You know what I'm talking about. I was unable to, push him and all. उसने बेसिकली वो एक्ट कमिट किया जो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग पनिशेबल है. व्हाट इज रेप? कंसेंट के बिना किया हुआ कोई भी सेक्स रेप ही होता है. और लोग पता है मुझे क्या पूछते हैं, तुमने उसको घर पे आने ही क्यों दिया? हाउ कैन यू ब्रिंग एन अननोन पर्सन होम? चलो ठीक है, दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन, राइट? दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि हर कोई नहीं बुलाते. सो क्योंकि मैंने उसको घर पे बुलाया, मेरा इंटेंशन चाहे कुछ भी हो, लोगों ने मुझे ये गलत माना कि ये तुम्हारी गलती से हुआ है, तुमने उसको इनवाइट क्यों किया. मेरा इंटेंशन किसी ने नहीं देखा कि मेरा इंटेंशन उसके साथ कुछ करने का था ही नहीं, क्योंकि ही पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज एन एनिमल लवर एंड आई एम एन एनिमल लवर. So I thought we could, bond over that. So that case is still in court. I filed a case on him eventually, and it's just going on, opposition का lawyer मुझे ये कहता है, कोर्ट में ये कहता है जज को कि मतलब उस टाइम पे आई वॉज लिविंग विद अ यंग बॉय. आई मीन आई एम अ 30-year-old पर्सन, एंड उस टाइम पे जो मेरा रूममेट था वो 20-year-old एक लड़का था, कॉलेज स्टूडेंट. तो रूममेट इन नहीं, फ्लैटमेट. हम दोनों घर के रूम्स अलग थे, और हम लोगों ने बेसिकली वो फ्लैट साथ में इसलिए शेयर किया था, जस्ट टू कट द मनी. 18,000 का फ्लैट था. फाइनेंशियल फैक्टर. मेरा ये था 18,000 का फ्लैट था, 9,000 तुम दो, 9,000 मैं दूं, और दैट्स इट. अच्छा फ्लैट था इसलिए. सो ही एक्चुअली, द ऑपोजिशन का लॉयर, ही एक्चुअली टारगेटेड दिस कि कैसी लड़की है, बिना शादी के, बिना किसी रिलेशन के, एक अननोन लड़के के साथ रह रही है, एंड कैसी लड़की है, कि इसने किसी अननोन को घर बुला लिया. मतलब कैसी लड़की. इवेंचुअली मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा, जो कि इजीएस्ट सिंपल सी बात है. अगर आपको किसी लड़की को गलत पोर्ट्रे करना है तो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा दो. मुझे पता है कि मुझे और भी बातें सुननी पड़ेंगी. मैं सुनती हूँ, मैं अपने घर वालों से सुनती हूँ कैसे मेरी गलती थी. एंड मतलब बेसिकली वो लोग ये कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी, और मेरे साथ इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि मैंने अपनी बाउंड्री क्रॉस करी एज अ फीमेल. See, it's very unconventional. India में it's very unconventional. लड़का लड़की को he can ask, he can ask a girl out. A boy can ask a girl out. But if a girl asks a boy out, suddenly she's labeled as a characterless and loose person. Yeah. मतलब I was just an animal lover. I thought कि हम लोग connect कर सकते हैं उसको. और उसके बाद भी मैंने रिकॉर्डिंग करी थी, जस्ट टू बस्ट हिम. मैंने उससे व्हाट्सएप कॉल पे मैंने उससे पूछा कि व्हाई यू डिड दिस, व्हाई यू डिड दैट. ही नेवर सेड सॉरी. ही सेड वन थिंग, आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ. ही सेड आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ. एंड आई वाज लाइक, आर यू किडिंग मी? तो मतलब तू मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया. आर यू रियली किडिंग मी? सीरियसली तुमको ना नहीं समझ में आती है? Hari, I know this is a topic which Deepali, I am actually talking about my
rape. Okay, That's it's what not I'm an saying. easy thing. हाँ, That's what I was going to say, that, I know what I'm talking of. And I do know that, the emotions that you are in as of now. Uh, मुझे तो but पूरी लाइफ ब्लेम किया जाएगा दीपाली, मुझे पूरी लाइफ ब्लेम किया जाएगा। इंडिया है ये, और इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर, लोगों के थॉट्स क्या होते हैं, uh, आलिया, सवाल ये है कि ब्लेम किया जाएगा, बट वुड यू जस्ट एम्फसाइज ऑन दोज पीपल? You know we are there, आई नो। right? इट्स Right? लाइक कि लड़का। So, let's. I am not trying to over here undermine what you're going through, नहीं नहीं, मैं and I अंडरमाइन know it करने की is. बात ही नहीं करी। And I know I आई नो can take यू। that liberty with you, because I know we know each other quite a lot in that sense. Uh, so here, instead of now that we have talked about this, I would like you to indeed talk about the concept, would have how it would have been different. How is the idea of being raped in your eyes being different, being with a man who is loving you physically, sexually? What is that बहुत idea? फर्क है, बहुत फर्क है, So, ट्रस्ट मी। yeah, I would like you to talk about it. लव मेकिंग कम्स फ्रॉम रेस्पेक्ट। फर्स्ट थिंग इज दैट कि लव मेकिंग कम्स फ्रॉम रेस्पेक्ट, रेस्पेक्टिंग ईच अदर्स स्पेस। कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, अरे कंप्लीट स्ट्रेंजर्स भी होते हैं। आई हैव सीन पीपल जो कि पूछते हैं कि आर यू कंफर्टेबल विद दिस। मतलब वो आपको टच करने से पहले भी एक बार पूछते हैं कि आर यू कंफर्टेबल विद दिस। उनको जब वर्बल कंसेंट मिल जाता है, पता नहीं कौन सा कंट्री है, कोई तो कंट्री है, पता नहीं स्कॉटलैंड है या आई एम नॉट श्योर, वहां पे वर्बल कंसेंट लड़की का बहुत इंपॉर्टेंट है। I think in इंडिया में India, even the guys who respect a girl do end up asking somewhere or the other at some यस, stage. They do end up या asking. पूछते हैं। You just don't breach into the other person's life. And it is to be true on the एंड other मेक side एक्सक्यूजेस also. अबाउट इट, एंड मेक एक्सक्यूजेस अबाउट इट। कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। आर यू रियली किडिंग मी? मतलब क्या बचपने वाली बात है, तुम बच्चे हो हैं कि तुमने आइसक्रीम देखी और तुम्हारे मुंह में लार आ गई और तुम रो दिए कि नहीं मेरे को आइसक्रीम चाहिए। अरे वहां पे भी रो आप अगर छीन के ले जाओ तो वो एक अलग चीज है। रोना एक, that's वही, still tolerable. You bloody shouldn't दैट इज cry स्टिल about it. We टॉलरेबल। don't care. और सबसे बड़ी बात ये है कि व्हाट दैट गाय डिड, ही फर्स्ट किस्ड मी विदाउट माय कंसेंट, एंड उसके बाद उसने सॉरी बोला, और उसके बाद उसने वही हरकत रिपीट करी। ही वॉज नेवर सॉरी फॉर वट ही डिड। उसको बस ये दिखा कि मुझे ये लड़की अच्छी लग रही है और मैं इसके साथ करूंगा। लड़की अच्छी लग रही है कि इजी टारगेट है, डोंट नो। इजी टारगेट का ना डेफिनेशन भी अलग होता है। अब पता है लड़कियों को, देखो लड़कियां थोड़ी सी भी फ्रेंडली हो जाती है ना, तो लड़कों को ये लगता है कि इजी टारगेट हाँ, है। तो वही है, उनके हिसाब से वो इजी टारगेट है। मतलब आई इंडिया एम नॉट में सेइंग देखो, इजी इंडिया में टारगेट। इजी मोस्टली, हाँ, टारगेट वो भी होती है जो बेसिकली इंडीड, इसीलिए शायद रिसर्चर्स ये कहती हैं कि ऑल्दो एक तरफ से हम लोग ये कहते हैं कि रेप में लड़की ने कपड़े क्या पहने वो इम्पोर्टेंट है, बट हकीकत ये है, मैक्सिमम रिसर्चर्स ये कहती हैं कि द गर्ल्स हु हैव बीन रेप्ड आर इन their proper dresses. There are less people, girls in short dresses and stuff like that, because somewhere there is also an assumption that the girls who are comparatively more strong-headed, who can be comfortable wearing what they're wearing, would even have that strength to basically later on fight for her rights, which is again not an easy kill. So it is मैंने तो also ये भी about, सोचा था। it मैंने is an सोचा easy, था, इजी it थिंग इजी नहीं है, फाइट करना भी अपने लिए इजी नहीं है। मैंने जब से केस uh, फाइल कराए, मैं हजार बातें नहीं, सुनती हूँ। इजी नहीं है, बट कहीं ना कहीं फिर भी तुम कर पाई हो। The day you told me about this, I don't think I would have even repeated that fact कि तुम्हारी कहीं गलती थी. I only said that it was rape. There's no second thought around it. So we still have that
क्लैरिटी इन आवर हेड्स कि है हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग जो हमें कम से कम वहां पे सपोर्ट करेंगे. देयर वुड बी और पीपल हु वुड. और ये भी चीज है, आई हैव मेट अ गाय, मतलब देयर वाज अ गाय हु वांटेड टू बी विद मी. उसने मुझसे एक बार पूछा कि अगर हम लोग करते हैं, उसने मुझे कहा कि मेरा मन कर रहा है इंटीमेट होने का, आर यू ओके विद दैट. उसने मुझसे पूछा, और जब मैंने ना बोल दिया, ही बैक्ड ऑफ. उसने उसके बाद दोबारा वो चीज रिपीट नहीं करी. नाउ दैट इज व्हाट आई कॉल लव मेकिंग. लव मेकिंग में हमेशा कंसेंट होता है, एक दूसरे के बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट होती है. अब वो स्ट्रेंजर्स के बीच में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में हो, या वाइफ हस्बैंड के बीच में हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने जिस पॉडकास्ट के लिए, मैंने और आपने जिस पॉडकास्ट के लिए इंटरव्यू दिया था, मैंने भी दिया था, तो उस टाइम पे हम कंसेंट, उसमें कंसेंट का भी एक एपिसोड है. एब्सोल्युटली. हाँ, तो मुझे पता. और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जैसे मेरे पेरेंट्स को पता चला, तो देवर लाइक कि लड़के की गलती नहीं, लड़के तो ऐसे ही होते हैं, तुमको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था, तुमने क्यों उसको इनवाइट करा. मतलब घूम फिर के गलती मेरी ही मान जा रही. कोई ये नहीं देख रहा कि ही ब्रीच्ड माय पर्सनल स्पेस. देखो, जस्ट बिकॉज, देखो मान लो दीपाली आके आपने किसी को इनवाइट किया घर पे एज अ गेस्ट, आपने तो अच्छे इंटेंशंस के साथ किया, लेकिन अगर वो गेस्ट आपके घर को अपना घर मानने लगे, देन दैट्स अ प्रॉब्लम. मतलब घर में गेस्ट भी आता है, तो भी वो कुछ एक सर्टेन बिहेवियर, कुछ सर्टेन चीजें एक करता है. बाउंड्री होती है. एक एक बाउंड्री बाउंड्री होती है होती उसमें. है. जस्ट बिकॉज कि तुम मेरे घर में हो डजंट मीन दैट्स नॉट एन इनविटेशन. And sex is not about control. Interestingly, एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज है. आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ इज एन एक्सक्यूज. हु आर यू? जानवर हो? जानवरों का तो फिर भी समझ में आता है कि उनके अंदर एक प्राइमल इंस्टिंक्ट होता है, लेकिन तुम तो इंसान हो, तुम तो समझ सकते हो. जब किसी ने एक ना बोल दिया तो ना बोल दिया. तभी हाउ डिफिकल्ट इट इज टू अंडरस्टैंड. even in animals, when there is a repel back, there is a capacity of repel back. It is not that, I was once, this is very interesting. You're reminding me of that. I remember एक बार हमारे एरिया में मोर बहुत है, and I was watching once a peacock. मोर मोरनी का पटाना. Morni ka patana. That was the sweetest thing. I actually parked my car and I started watching it, and it was worth it. मतलब मोर कितनी मेहनत से बेचारे मोरनी को पटाता है कि उसके बाद में जो पट्टी है उसी के पीछे जाता है. नॉट द होल गैंग ऑफ इट. द होल डांस ऑफ द मोर इज अबाउट आई एम एलिजिबल, प्लीज लुक एट मी. या Basically, indeed, this also reminds me of the fact कि जो हम हमारे पुरानी कहानियों में सुनते हैं, the whole idea of the man who had to win the princess, और the सीता को भी जीतने के लिए राम को तीर चलाना पड़ा था, अर्जुन को जीतने, द्रौपदी को जीतने के लिए धनुष्बाण तोड़ना पड़ा था. It is always about the idea of, winning the heart of the female before stepping towards दैट्स her. कॉल्ड कोर्टशिप. दैट्स कॉल्ड कोर्टशिप. Uh, मतलब that's प्रॉपर वर्ड कोर्टशिप है. that's not just, but then over here I would also like to bring about the fact that it is not that once you have done it, it's over. It doesn't get over there. आपने अगर एक बार लड़की ने आपसे शादी कर ली है, डजंट मीन वो तुम्हारे लिए सेक्सुअली अवेलेबल है हर वक्त. हर डिजायर डजंट हैव एनी इम्पोर्टेंस आफ्टर दैट. नो, शी हैज अ से एट एवरी स्टेप. इंडीड वो हाँ कह के भी ना कह सकती है किसी चीज के लिए. If she has a certain discomfort at some level, she can say no to it. देखो मेन चीज, आई थिंक मेन चीज यही है. हाँ बोलो बोलो. सॉरी. So it is about, yeah, it's okay. We are basically in a way
trying to say the idea. I think we are actually talking about the idea that, at every stage, it is about, if it is about love making, it is about the pleasure of both. Exactly. So if it is about the pleasure of the both, the place where the other person is getting uncomfortable, hurt, or in pain, that cannot be anymore be love making. और सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर, मैंने जैसा कि मैं बार बार हमेशा हमेशा कहती आई हूँ कि कोई भी रिलेशनशिप हो, वो कोई भी हो सकता है कि वो रिलेशनशिप ना भी हो, एक आदमी अगर किसी सेक्स वर्कर के पास जाता है तो सेक्स वर्कर को भी हक है ना बोलने का। Absolutely. तो वही वाली बात है, वो अपना काम कर रही है, बेसिकली वो उसका काम है। तो अगर उसका मन नहीं है काम करने का, तो वो नहीं करेगी, वो नहीं लेगी पैसे। सिंपल सी बात है। आई हैव और वो सीन, लेने के बाद में भी मना करके वापस दे सकती है पैसा. It is हाँ, not just like, it's और कह दिया तो क्या वहां पे उसको फांसी पे लटका दो. Sorry, एक no. एक चीज ये भी है, एक चीज यहाँ पर ये भी है कि आई नो समवन हु वेंट टू अ सेक्स वर्कर। मैं नाम तो नहीं बता सकती, बट दैट गाय इज माई फ्रेंड, ही वेंट टू अ सेक्स वर्कर। तो उसको वो बताता था कि कैसे सेक्स वर्कर्स है ना, आदमियों को ना धक्के मार मार के बाहर निकालते थे, जस्ट बिकॉज कि अच्छा कि इसने हमारी डिसरिस्पेक्ट करी। तो मतलब उनमें भी वो ये चीज होती है कि देखो सिंपल सी बात है, माय हाउस माय रूल्स, एक तरीके से माय बॉडी माय स्पेस। तो Absolutely. हाँ, तो मतलब और सारी चीजें ना अल्टीमेटली रेस्पेक्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आके आ जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पता है क्या, उस लड़के के एक्चुअली में चांसेस होते मुझे आगे डेट करने के, अगर उसने उस दिन वो हरकत नहीं की होती। तो उसको क्या लगा कि मुझे लड़की पसंद आई या इजी टारगेट है, तो मैं जो चाहूंगा करूंगा। और उसके बाद ही हैड गट्स टू आस्क मी कि विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। आई वाज लाइक व्हाट, यू जस्ट क्रॉस देयर बाउंड्री। भगवान न करे, मतलब ऐसे आदमी की अगर किसी से शादी भी हो जाएगी तो वो तो अपनी बीवी को दिन Let's रात, not get it. Let's not get into that. Let's not get yeah, into let's that. not get into that. Maybe I am Let's being, not get it. a little into. I know you're getting angry about it, upset about it, but let's not get into that. Let's close it हाँ, over here. I think we'll end it over here for today. Let's not get into those yeah, boundaries. sure. Right? चलो, Take care. थैंक यू दीपाली। You're welcome. Bye. Thanks a ton for Indeed sharing all this. Thank you. नहीं, और सबसे Bye. बड़ी बात देखो, मैं तो तैयार हूँ बोलने के लिए, एंड आई थिंक कि लोगों को बोलना चाहिए, ठीक है, बिकॉज तभी चीजें Absolutely. नॉर्मलाइज होंगी, कि तभी चीजें Absolutely. नॉर्मलाइज होंगी। तो मैं और सबसे बड़ी बात है कि गर्ल्स को लेके मैं यही बोलूंगी कि आपके साथ चाहे कुछ भी हुआ हो, किसी क्लोज पर्सन को, किसी अच्छे दोस्त को, किसी कॉन्फिडेंट को आप है ना बताइए। एक सपोर्ट सिस्टम अपने पास रखिए, लाइक माइंडेड लोगों का, ताकि आपको अकेला फील ना हो। एंड यू आर नॉट सपोज टू जस्ट बिकॉज कि आप लड़की हो तो आपको कंट्रोल में रहना है, अकॉर्डिंग टू दैट कंट्रोल, सोसाइटी वाला, कि अपनी लिमिट में रहना है। बोलो, सपोर्ट सिस्टम गैदर करो, और अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ भी है, Respect yourself, respect others, and if somebody crosses your respect lines, you have all the right to say it. दैट्स व्हाट इट इज। एंड लोग जनरली इस बारे में बात नहीं करते हैं। मुझे भी कई बार बोला गया है कि तुम क्यों इस बारे में बात करती हो, दिस इज नॉट समथिंग विच यू शुड टॉक अबाउट, तुम्हारी रेपुटेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, आई वॉज लाइक कि मेरी देखो अल्टीमेटली द केस इज देयर, ठीक है, whether I win that or lose that, that's a different thing, but eventually that guy is paying for what he has done. Right now that guy cannot apply to a job since he is a prime accused in the case. He cannot apply to a job, he cannot marry, he cannot date, and he spent 6 months in Tihar jail. We all know how Tihar is. थोड़ा बहुत तो उसने भी पे करा है, उसको समझ में आ गया होगा अब तक।
और नहीं भी I आया hope. तो I just hope. लेकिन उसको नहीं आया क्योंकि वो उसका लॉयर पलट के मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि मैंने उसको फंसाया है। और ट्रस्ट मी दीपाली, मेंटली हमने मेंटल उसके बारे में बात नहीं करी है, मेंटल इफेक्ट के बारे में कि कैसे वो मेंटली असर करता है। मैंने 5 दिन, जिस दिन मुझे पता चला था कि वो बंदे ने, उस बंदे ने, उसके लॉयर ने मेरे अगेंस्ट मतलब पलट के कंप्लेन करी है। 40 कंप्लेंट्स गई थी मेरे अगेंस्ट, ये कहते हुए कि इस लड़की ने फंसाया है। और ये सुन के कि 40 कंप्लेंट्स मेरे अगेंस्ट हुई है, 5 दिन दीपाली, मैंने 5 दिन खाना नहीं खाया था और मैं सो नहीं पाई थी, एंजाइटी, यू नो। तो होता है वो सारी चीजें होती हैं। Absolutely. कोई मुझसे नहीं पूछता। Absolutely. द वर्स्ट पार्ट इज दैट नो वन आस्क्स के वत्सला हाउ यू आर फीलिंग। सबको यही दिखता है कि मैंने उसको इनवाइट करके गलती कर दी, और मुझे नहीं पता। मैंने तो सिर्फ उसको एक अच्छे वे में, एक अच्छे इंटेंशन के साथ, थिंकिंग कि ही इज एन एनिमल लवर, मैंने उस पर ट्रस्ट किया, मैंने उसको बुलाया। और मैंने सिर्फ इसलिए बुलाया था कि वो एनिमल लवर है, अदरवाइज मैं उसको नहीं बुलाती। आई वॉज रॉन्ग। We do mistakes sometimes. होती हैं But चीजें। obviously, your mistake was only about inviting the wrong person. Rest was his mistake. For sure, it was his mistake, right? दैट इट इज एंड हम लोग है ना, इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है कि आज नहीं, फ्यूचर में भी, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट सेक्स एंड कंसेंट, तो हम कर सकते हैं। Sure, we'll do that. We'll ठीक do है, that. बिकॉज देन आई कैन टॉक अबाउट माय पार्टनर्स, और उनके साथ Yeah, मेरा क्या absolutely. एक्सपीरियंस रहा। सो Absolutely. We'll आई do कैन that. आई कैन टॉक अबाउट दैट। Yeah, absolutely. We'll close it here for today. श्योर। Take care. Bye. बाय।